સૌને નમસ્કાર, પ્રણામ. સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ રાપરના ગુજરાતી વિભાગ દ્વારા આયોજિત પ્રશિષ્ટ કૃતિ પરિચય શ્રેણીનો આજે 73મો મણકો છે. એક પછી એક ઉત્તમ કૃતિની વાત આપણી શ્રેણીમાં થઈ રહી છે. એમાં એક વધુ મોતી આજે ઉમેરાશે. સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ પણ પહેલી વખત આ કૃતિ એટલે કે આ સ્વરૂપની વાત થશે, આ પ્રકારની કૃતિની વાત થશે. ધર્મવીર ભારતીની નું હિન્દી કાવ્ય નાટક, જેને હિન્દીમાં ગીતિ નાટક કહેવાય છે, એવા ગીતિ નાટક અંધા યુગની વાત આજે આપણી સાથે કરવા જોડાયા છે ડોક્ટર મોહમ્મદ ઇકરામ અંસારી સાહેબ. ડોક્ટર ઇકરામ અંસારીનો જન્મ એ ગામમાં થયો છે જે ગામે ગુજરાતી ભાષાને અને આમ કહીએ તો ભારતીય સાહિત્યને એક સમર્થ સર્જક આપ્યા છે. હા, એ ગામ છે બામણા, જ્યાં ઉમાશંકર જોશી જેવા એક કવિ મનીષી જન્મ્યા. ત્યાં જ આપણા આજના વક્તાનો જન્મ થયો છે. એ પણ એક ગૌરવ લેવા જેવી મોટી ઘટના છે. ડોક્ટર ઇકરામ હાલે સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઓશીનામાં આવેલી સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજમાં હિન્દી વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે સેવારત છે. તેમણે નેટ, સ્લેટ, જીઆરએફ ની પરીક્ષાઓ પાસ કરી છે અને ડોક્ટર મૃદુલાબેન પારેખ ના માર્ગદર્શન હેઠળ સમકાલીન હિન્દી કવિતા में વ્યંગ્ય એ વિષય પર એમણે તાજેતરમાં જ પીએચડી નો અભ્યાસ સંપન્ન કરેલ છે. એટલે બહુ જ આનંદ થાય, એક યુવા અભ્યાસી મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે એનો. તેઓ ઉત્તર ગુજરાત હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટીમાં બોર્ડ ઓફ સ્ટડીના મેમ્બર પણ છે. વક્તૃત્વ કળાનો તેમને શાળા કોલેજ સમયથી જ શોખ રહ્યો છે અને સ્કૂલ કોલેજ સમયમાં જિલ્લા કક્ષાએ, યુનિવર્સિટી કક્ષાએ અનેક વક્તૃત્વ સ્પર્ધાઓ, ડિબેટ કોમ્પિટિશનમાં તેમણે ભાગ લીધો છે. એટલું જ નહીં પણ વિજેતા પણ થયા છે. 2 વખત ગુજરાત રાજ્ય સ્તરીય વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને મેળવ્યું છે, તો એકવાર રાષ્ટ્રીય સ્તરની વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં પણ તેમણે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યો છે. 2014માં મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપુરમાં યોજાયેલ સ્પર્ધામાં મહારાષ્ટ્રની પુણે યુનિવર્સિટીમાં તેઓ 3જા સ્થાને, રાજસ્થાનની બનસ્થિત વિદ્યાપીઠમાં બનસ્થલી વિદ્યાપીઠમાં 2જા સ્થાને અને ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તેઓ પ્રથમ સ્થાને રહેલા. એટલે આવા એક મજાના યુવાન આપણી સાથે આજે જોડાશે અને વાત કરશે. તેમને મૌલિક લેખનનો પણ શોખ છે, એટલે લખતા પણ રહે છે, તેમની કલમ પણ ચાલે છે. અને અમે લોકો કેસીજી મુકામે એક તાલીમમાં ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં મળેલા, ત્યારે મને જે એમનો પરિચય થયેલો તે એકદમ મિતભાષી, મૌન સેવતા, બહુ જ ભાગ્યે જ બોલતા, પણ મંદ સ્મિત કરી અને બધાને મન મોહી લેતા એવા ઇકરામભાઈ તરીકે અમે એમને પહેલા જોયેલા. અને પછી થેન્ક્સ ટુ સોશિયલ મીડિયા આપણે બધા જોડાયેલા છીએ. પણ આજે આપણી કોલેજ સાથે તેઓ જોડાયા છે. પોતાની ગમતી કૃતિની વાત કરવાના છે, પોતાની હિન્દી ભાષામાં પણ જ વાત કરવાના છે, એટલે આપણને મજા પડવાની છે. તો એક નવા સ્વરૂપની, થોડા જુદા પ્રકારની અને એવી એક વિશિષ્ટ કૃતિની વાત લઈને તેઓ આવ્યા છે. ત્યારે સમગ્ર કોલેજ પરિવાર અને સૌ શ્રોતા મિત્રો વતી ડોક્ટર ઇકરામ, આપને હાર્દિક અભિવાદન કરીએ છીએ. આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને વિનંતી કરીએ કે આપની ગમતી કૃતિની વાત મારા બધા સાથે વહેંચો. જી, बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज रापर का, गुजराती विभाग का, प्राचार्य महोदय रावल साहब का और विशेषकर रमजान सर का मुझे यह मौका देने के लिए। वाकई यह एक बहुत बड़ा उपक्रम है। विविध भाषा, प्रांत एवं राष्ट्र की कृतियों को इतने बड़े पैमाने पर पाठकों तक और साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना, इतना ही नहीं, एक लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होना वाकई बड़ी बात है, जिसकी तारीफ होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो 72 कड़ियां जुड़ चुकी हैं और मैं 73वीं कड़ी जोड़ने आया हूं। सच कहा जाए तो जुड़ी हैं, वाकई जुड़ी हैं। रमजान सर के यूट्यूब चैनल पर
यह सारे व्याख्यान एक तरह से सहेजे गए हैं। इसलिए बीत चुकी है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ये जुड़ी हैं और जिसका फायदा कोई कभी भी जाकर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जाकर उसका फायदा ले सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में ये बहुत ही बड़ी बात है जिसका फायदा पाठक उठा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं 73वीं कड़ी लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के बहुत ही मशहूर रचनाकार धर्मवीर भारती जी का काव्य नाटक। जैसा कि मैंने कहा, धर्मवीर भारती जी हिंदी साहित्य के बहुत ही मशहूर रचनाकार हैं। तो उन्होंने एक तरह से हम देखते हैं कि पाया जाता है साहित्य जगत में कि कोई एक रचनाकार जब लिखता है तो एक दो विधाओं में वो काफी अच्छा लिखता है और उसमें काफी आगे भी बढ़ता है, उसकी कलम काफी आगे बढ़ती है। ऐसे विरले रचनाकार होते हैं जो अधिकतर विधाओं में लिखते हैं और उन सब में कमाल करें। तो धर्मवीर भारती जो हैं उन विरले रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने अधिकतर विधाओं में लिखा और जिन जिन विधाओं में उन्होंने लिखा, जिन जिन विधाओं में उन्होंने कलम चलाया, जहां जहां वो आगे बढ़े, उन सब में उन्होंने कमाल किया। मैं कहना चाहूंगा कि वे एक बहुत ही बड़े उपन्यासकार हैं। गुनाहों का देवता उनका उपन्यास तो हिंदी साहित्य में कई सालों तक बेस्ट सेलर बुक के नाम पर जाना जाता है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास उनका है और श्याम बेनेगल जी ने इसी नाम से इस पुस्तक पर फिल्म भी बनाई। उपन्यासकार बहुत बड़े अच्छे तो हैं ही, साथ में नाट्यकार भी हैं और अंधा युग जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो उनका बहुत ही, हम कह सकते हैं कि हिंदी काव्य नाटक में एक मील का पत्थर है उनका अंधा युग काव्य नाटक। बहुत अच्छी कहानीकार है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चादर और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान आदि उनके निबंध संग्रह है। और वे बहुत बड़े निबंधकार भी हैं। पश्चंती, ठेले पर हिमालय उनके निबंध संग्रह हैं और बहुत आज बात करने वाले हैं जिस, तो वह भी कविता के माध्यम से उन्होंने नाटक रचने का काम किया है। तो उनके जो काव्य संग्रह है वो है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनु प्रिया आदि उनके काव्य संग्रह है। और एक कवि के रूप में वे काफी प्रतिष्ठित हुए हैं। 50 और 60 के दशक में नई कविता करके हिंदी साहित्य में एक युग चला। उस नई कविता के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तार सप्तक नामक संग्रह के कवि रहे हैं। तार सप्तक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि अज्ञे द्वारा संपादित संग्रह है। उन्होंने अभी 4 सप्तक उन्होंने निकाले और दूसरा सप्तक 1951 में आया और धर्मवीर भारती जी इसी दूसरे सप्तक के कवि है। इस सप्तक की विशेषता ये रही कि अज्ञे जी ऐसे कवियों को चुनते थे, 7 कवियों को, कि जो किसी स्कूल के नहीं होते थे, बिल्कुल नए प्रतिभाशाली कवियों को वे चुनते थे। और अधिकतर जिन जिन कवियों को चुना उन्होंने, वे सारे कवि हिंदी साहित्य में बहुत प्रतिष्ठित हुए। तो ऐसे ही तार सप्तक, दूसरा सप्तक के वे एक कवि रहे हैं। और एक बात खास उनके मुझे रह गई उनके लेखन से जुड़ी हुई कि वे बहुत बड़े संपादक रहे हैं। धर्मयुग नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया और एक समय था कि वह लाखों में उसकी प्रतियां निकलती और भारतीय मध्य वर्ग की पहली पसंद बन चुकी थी धर्मयुग। और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाया उन्होंने। इस धर्मयुग पत्रिका के माध्यम से बहुत समय भी दिया। तो एक बड़े उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, कहानीकार, आलोचक और संपादक, पत्रकार, सब कुछ उनमें, उनके व्यक्तित्व का ये एक विशाल दायरा है। और इसी दायरे में आता है उनका अंधा युग काव्य नाटक। सॉरी टू डिस्टर्ब। जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि एक विशाल साहित्यिक जीवन रहा है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक बड़े उपन्यासकार रहे हैं, नाटककार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं और उन्होंने आलोचना लिखी है, आलोचक रहे हैं और बहुत बड़े पत्रकार, संपादक रहे हैं धर्मवीर भारती। और ऐसे ही बड़े और बहुत मशहूर रचनाकार की रचना अंधा युग लेकर मैं आप सबके सामने आज उपस्थित
हुआ हूं। तो अंधा युग एक काव्य नाटक है, यानी कविता के माध्यम से रचा गया नाटक। सारी विशेषताएं नाटक की हैं, लेकिन खास विशेषता उसकी शैली है जो काव्यात्मक है। कविता के माध्यम से उन्होंने यह नाटक रचने का काम किया है। महाभारत की पृष्ठभूमि पर रचा गया है यह काव्य नाटक। और हम जानते हैं कि कोई भी रचनाकार जब अपनी रचना के लिए इतिहास की ओर देखता है तो जाहिर है उसका उद्देश्य केवल इतिहास को पुनरावर्तित करना नहीं होता। उसका उद्देश्य इतिहास के माध्यम से वर्तमान को प्रस्थापित करना होता है। वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें उजागर करना होता है या उन पर प्रहार करना होता है। भारती जी का उद्देश्य भी इतिहास के माध्यम से वर्तमान की परिस्थितियों को उजागर करना रहा है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने महाभारत के एक छोटे से वाक्य को लेकर अंधा युग नामक काव्य नाटक रचा। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, लेकिन भारती जी उन शुरुआती 18 दिनों की चर्चा नहीं करते। वे 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु तक के वाक्य को अपने नाटक में स्थान देते हैं। जाहिर सी बात है, उनका उद्देश्य युद्ध कैसे लड़ा गया, किसने किसको मारा, कौन कहाँ गिरा, किसने कौन सा वार किया, यह दिखाना नहीं है। उनका उद्देश्य युद्ध के बाद फैली विभीषिका को दर्शाना है, उस मूल्यहीनता को दर्शाना है जो कुछ लोगों की विवेकहीनता के कारण पूरे समाज को अपने चपेट में ले लेती है। यही उद्देश्य लेकर वे महाभारत की उस कथा को लेकर अंधा युग नामक काव्य नाटक वे रचते हैं। खास तौर से उन्हें ये नाटक लिखने के लिए जो आंदोलित जो जिसने किया, जिस घटना ने किया, वह घटना है दूसरा विश्व युद्ध। हालांकि सारे युद्ध चाहे छोटे हो या बड़े, विध्वंस लेकर आते हैं, लेकिन विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध की बाद जो फैली अमानवीयता और मूल्यहीनता है, उसने भारती जी को बहुत आंदोलित किया। और इसी के चलते और इसी से आंदोलित होकर वे अंधा युग नामक काव्य नाटक रचते हैं। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोग, निर्दोष लोग मारे गए। पूरी दुनिया एक दूसरे पर हावी थी ताकत पाने के लिए। सबको ताकत पाना था और सबको गलत तरीके से ताकत पाना था। और अगर गलत रास्ते पर चलकर ताकत पाना है, शक्ति पानी है, तो उसके लिए तो हमें बस छीनना पड़ेगा। जो कुछ दूसरों के पास है उससे छीनना पड़ेगा, तभी हमारे पास ताकत बढ़ेगी। यही हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में भी। हम लोग, पूरी दुनिया एक दूसरे से छीनने पर तुली हुई थी और जो नहीं दे रहा था उनकी हत्या हो रही थी। 1 हत्या, 2 हत्या, 3 हत्या, ऐसे करते करते ये हत्याएं नरसंहार में बदलने लगी और पूरी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई। सिर्फ दूसरा विश्व युद्ध नहीं, हम इस नाटक का जो रचना काल है वो 1954 है, यानी आजादी के कुछ वर्षों बाद ही यह रचना आई। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में भारत का जो विभाजन हुआ और उस विभाजन के वक्त जो लोगों ने सफर किया, दोनों ओर के लोगों ने, यह भी कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में जरूर रहा होगा। तो युद्ध के बाद फैली विभीषिका और उसमें जो आम नागरिक जो भोग बनता है, और इस नाटक में भी मुख्य जो बातें हैं उसमें एक प्रमुख बात यही है कि कुछ लोगों के चलते पूरी मानवता को हानि पहुंचती है। यह करने वाले युद्ध के विरुद्ध में है यह रचना, ये तो हम अब तक समझ ही गए हैं। लेकिन यह युद्ध करने वाले और पूरी मानवता को इसमें झोंक देने वाले लोग चंद लोग होते हैं, लेकिन इसका भोग बनते हैं वह आम नागरिक जिनका अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता। एक आम इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और कुछ घंटों की नींद बहुत है उसके लिए।
उसे दुनिया में क्या चल रहा है, सरहदों पे क्या हो रहा है, कौन कहाँ किससे बात कर रहा है, कौन सी डिप्लोमेसी चल रही है, उससे उसको लेना देना नहीं है। लेकिन जब उन चंद लोगों के चलते जब युद्ध होते हैं, तब सबसे पहला शिकार यही आम लोग बनते हैं। तार सप्तक, जैसे कि मैंने चर्चा की, तार सप्तक के ही एक और कवि हैं, दूसरे सप्तक के ही तीसरे सप्तक के कवि हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वे अपने खूंटियों पर टंगे लोक काव्य संग्रह में इसे युद्ध युद्ध किस तरह एक आम आदमी को शिकार बनाता है, इस संदर्भ में लिखते हैं। उनकी कविता है कि जब सब बोलते थे तब वह चुप रहता था, जब सब चलते थे तब वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे तब वह बैठा टूंगता रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। यानी जो कुछ जिसको अपने रोजमर्रा के जीवन से ही फुर्सत नहीं, जो अपनी दिनचर्या में अपने पेट पालने के लिए पूरा दिन व्यस्त रहता है और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता है, ऐसा व्यक्ति ही युद्ध की विभीषिका का सबसे पहला शिकारी बनता है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी पंक्तियों में कह रहे हैं। धर्मवीर भारती जी भी अपनी कृति का मूल इसी सोच, इसी विचार में मानते हैं। तो धर्म अंधा युग कहाँ से, अंधा युग लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली उन्हें? तो यहीं से मिली कि ऐसी विभीषिकाओं का भोग एक आम नागरिक क्यों बनता है, और इसी सोच, इसी प्रश्न से अंधा युग नामक कृति निकलती है, और धर्मवीर भारती जी इस कृति को विस्तार देते हैं। 2 वाक्य मैं कहना चाहूंगा कृति पर आने से पहले, और ये दोनों वाक्य, पहला जो वाक्य है ये है एक रचनाकार की उत्सुकता से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा वाक्य है वो है कृति की उत्कृष्टता से जुड़ा हुआ। पहला वाक्य कुछ यूं है कि 22-23 साल के थे धर्मवीर भारती जी, और उसी उम्र में उन्होंने अंधा युग नाटक लिख रहे थे। तो 1954 में उन्होंने लिखना ये प्रकाशित हुई, और जिस उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने मंचन के लिए अनुमति मांगी भारती जी से कि हम मंचन करना चाहते हैं आपके नाटक का। पहले तो टीवी और ये सब था नहीं, तो उन्होंने अनुमति दे दी, और जिस दिन यह नाटक रेडियो पर आने वाला था उस दिन वे बहुत बेचैन रहे। इतने बेचैन रहे कि साइकिल ली और इलाहाबाद की सड़कों पर निकल पड़े, घूमते रहे, और पहुंचते कहाँ है, एक पान की दुकान पर। भारती जी पान के बड़े शौकीन, वे पान खरीदते हैं, खाते हैं, और पाते हैं कि उस पान की दुकान पर अंधा युग चल रहा है। बेचैनी कम नहीं होती, वे वहां से फिर साइकिल लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वो दिन था जहां इतनी बेचैनी थी, हालांकि इस बेचैनी से हर रचनाकार गुजरता है, पर एक आज का दिन है कि आज अंधा युग इतना प्रतिष्ठित हो चुका है, इतना स्वीकार्य हो चुका है कि देश विदेश की अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। देश विदेश में हर जगह ये खेला जा रहा है। नए नए संदर्भ, नए नए आयाम इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, और इसका लचीलापन ये इतना लचीला है कि समय के साथ इसमें आसानी से बदलाव और प्रयोग हो रहे हैं। उन प्रयोगों के साथ यह खेला जा रहा है, इतना सफल है। और एक मान्यता ऐसी बन गई है कि जो मंच का कलाकार है, जो मंच का अभिनेता है, वो जब तक अंधा युग में अपना किरदार नहीं निभाता तब तक उसकी अभिनय की शिक्षा अधूरी मानी जाती है। यह वाकया धर्मवीर भारती जी की पत्नी पुष्पा भारती जी स्वयं बताती हैं, दर्ज करती हैं एक जगह। एक और वाकया है रचना की उत्कृष्टता से जुड़ा हुआ, और वो कुछ यूं है कि रंगमंच के बहुत बड़े डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी 1960 के आसपास वे तय करते हैं कि इस अंधा युग का हम मंचन करेंगे। वो भी कहाँ,
फिरोज शाह कोटला मैदान पर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर और खुले मंच पर इसका मंचन करने के बारे में उन्होंने सोचा। और उन्होंने सोचा कि दर्शक के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाए। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को फोन करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि देखिए, हमारे पास समय नहीं होता है और हम मुश्किल से 15-20 मिनट आपको दे पाएंगे, और ऐसे में 15-20 मिनटों के बाद बीच नाटक से निकलना ठीक नहीं होगा। तब अलका जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार आए। खैर, पंडित जी स्वीकार करते हैं उनका आमंत्रण और वे जाते हैं फिरोज शाह कोटला मैदान पर देखने के लिए। यह नाटक 2.5 घंटे तक चलता है और जो 20 मिनट लेकर आए थे नेहरू जी, पंडित जी, वो 2.5 घंटे तक बैठे रहते हैं और पूरा नाटक देखकर वे जाते हैं। और पहुंचते ही अलका जी को फोन करते हैं कि ये धर्मवीर भारती कौन है। मैंने आज तक अंग्रेजी नाटक देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन इस भारतीय नाटक ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसका मंचन भारत की ओर से देश विदेश में होना चाहिए। तो ये महत्व है इस नाटक का कि किस प्रकार ये लोगों को बांधे रखता है, लोगों को बांधे रखता है और एक रस में बांध देता है जहां से उठना मुश्किल हो जाता है। तो ये महत्व अंधा युग नाटक का है। 2 वाक्य मैंने कहे और जैसा कि मैंने कहा, हम सीधा सीधे कृति पर आएंगे। शुरुआत में मैं अभी थोड़ी सी कथा की, बहुत जल्दी से कथा की ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझने के लिए कृति को सामान्य ऊपर ऊपर से हम कथा को देख लेंगे, उसके बाद विस्तार से हम पात्रों पर आएंगे। क्योंकि इसके सारे जो पात्र हैं, पात्र तो वही महाभारत कालीन है, किंतु वे कहीं ना कहीं आधुनिक मनःस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस प्रकार से वे आधुनिक समाज, आधुनिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसकी कथा थोड़ी सी कुछ यूं है कि 18 दिनों तक युद्ध चला, 18 दिनों की संध्या है। शुरुआत में 2 प्रहरी गलियारे में घूम रहे हैं और युद्ध का सीधा दोषी वे धृतराष्ट्र को बताते हैं। वहीं पर धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर बैठे हुए हैं। विदुर धृतराष्ट्र को आईना दिखाने का काम करते हैं कि इस युद्ध का कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा दोषी है वह स्वयं आप हैं। अपना जवाब चर्चा होती है धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में। वहीं पर गांधारी है। गांधारी इस नाटक में बहुत मुखर है। वे अपने मंतव्य को लेकर, चाहे वो गलत हो सकते हैं उनके मंतव्य, उनके विचार, किंतु वे मुखर हैं और अंत तक वे मुखर रहती हैं। पहला जो अंक है वो कौरव नगरी है और इसी कौरव नगरी का दृश्य है पूरा। फिर दूसरा जो अंक है वो है पशु का उदय, और नाटक का केंद्रीय चरित्र आता है अश्वत्थामा, पशु बनकर। युद्ध किस तरह एक आम इंसान को, एक भले मानुष को, एक स्वस्थ इंसान को पागल बना देता है, किस प्रकार उसे पशु बना देता है, उसका रूप लेकर, उसका प्रतीक बनकर आता है अश्वत्थामा और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य बना लेता है अपने जीवन का, वो है प्रतिशोध, हत्या और मृत्यु। हालांकि अंत में वह भी आस्थावान हो जाता है। एक तरह से पूरी रचना में भगवान कृष्ण के विरोधी रहा है कि उसका मानना है कि यह जो युद्ध हुआ है और उसमें जो कौरवों की हार हुई है, उसका सबसे बड़ा दोषी यदि कोई है तो वह स्वयं प्रभु कृष्ण है, क्योंकि वह कौरवों की ओर थे। वहीं पर युसु का पात्र, अब युसु भी आते हैं और युसु कौरव थे, गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। इसके बावजूद वे लड़ते हैं पांडवों की ओर से। उन्होंने सत्य का साथ दिया है। इस सत्य के साथ देने के एवज में वह क्या कुछ भोगते हैं, कितना कुछ सहन करते हैं, यह बात हमें यह नाटक बताता है। उनकी दारुण स्थिति, युसु की दारुण स्थिति से हम वाकिफ होते हैं। विस्तार से जब चरित्र की चर्चा करेंगे तब हम इन पर चर्चा करेंगे। इसी बीच आता है गांधारी का श्राप। नाटक का चरम उत्कर्ष यहाँ पर होता है जब गांधारी भी एक तरह से
ईश्वर भगवान कृष्ण को ही दोषी मानती है। यह जो पूरा कौरवों की जो पूरी हार हुई है उसके लिए, और पूरे नाटक में वह भी भगवान कृष्ण की विरोधी ही रही। लेकिन और इसी विरोध के चलते वे जब पाती हैं कि उनके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है और उससे आहत होकर वो प्रभु को श्राप देती हैं, और प्रभु बड़े विनय से बड़े आदर के साथ भगवान कृष्ण उन्हें स्वीकार भी करते हैं उनके श्राप को। उसके बाद उन्हें भान होता है गांधारी को कि उन्होंने गलत किया है, और उस श्राप के चलते ही वह श्राप निमित्त बनता है, और अंत में भगवान कृष्ण को एक व्याध के हाथ भगवान कृष्ण की मृत्यु होती है। एक व्याध मूर्ख समझकर उन पर तीर चलाता है और वे विदा लेते हैं। द्वापर युग बीत जाता है, कलयुग की शुरुआत होती है। तो यह एक कथा है, महाभारत कालीन कथा है, और लगभग पात्र सारे वही हैं। वही धृतराष्ट्र, वही गांधारी, वही विदुर, वही युसु, वही दुर्योधन, वही धर्मराज, वही अर्जुन, सारे पात्र वही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह सारे पात्र नाम से भले ही महाभारत काल के हों, लेकिन अपनी भाषा, अपने संवाद और अपने अभिनय के माध्यम से बताते हैं कि वे आज के मानव के प्रतीक है। युद्ध के नाम पर जो विभीषिका, जो उद्दंड खेला जाता है, और इस युद्ध के बाद क्या स्थिति होती है आम नागरिकों की, और उसको दर्शाने के लिए यह सारे पात्र एक एक कर हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सशक्त पात्र जो इस नाटक का है वह है अश्वत्थामा का। केंद्रीय चरित्र है अश्वत्थामा। युद्ध में हिस्सा लेता है एक आम सिपाही की तरह, जिस तरह से सारे सिपाही, सारे योद्धा हिस्सा ले रहे थे। युद्ध के कुछ नीति नियम भी होते हैं, उन नीति नियमों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन जब अश्वत्थामा पाता है कि युद्ध में नियम टूट रहे हैं, और सबसे बड़ा नियम उसके अनुसार जो टूटा वह था अर्धसत्य। जी, तो जब घोषणा बीच युद्ध में घोषणा होती है कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर, हतप्रथ गुरु द्रोण अपने सारे हथियार फेंक देते हैं, और इस क्षण का इंतजार करते हुए धृष्टद्युम्न आता है और वह गुरु द्रोण की निर्मम हत्या कर देता है। एक बात यहाँ पर खास नोट करने वाली वो है कि यहाँ पर धृष्टद्युम्न केवल गुरु द्रोण की हत्या नहीं करता, लेकिन वह अश्वत्थामा के अंदर जो शुभ था, जो कोमल था, उसकी भी हत्या करता है। और यह बात बहुत पहले शुरुआत में ही, कृति की शुरुआत में ही धर्मवीर भारती जी ने कह दी है, जब वे कहते हैं कि युद्धों उपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। एक पतली डोरी है मर्यादा की, वह भी उलझी है दोनों पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में है साहस सुलझाने का। वे हैं भविष्य के रक्षक, वे हैं अनासक्त, लेकिन बाकी शेष सभी हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित। यह कथा उन्हीं की है, यह कथा अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो यहाँ पर ही रचनाकार स्पष्ट कर देते हैं कि यह कथा अंधों की है ज्योति के माध्यम से। और जब वे आगे बढ़ते हैं तब वे गीत के माध्यम से कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी मर्यादा, इसको दोनों पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम तो कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक हारा, दोनों में पक्षों में हारा अंधा, जीता अंधापन। जो शुभ था, कोमल था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। यानी शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया है कि जो शुभ था, जो कोमल था, वह हार गया। और यही बात अश्वत्थामा
सब जब अर्ध सत्य का सामना करता है तब कहता है कि मेरे अंदर जो शुभ है, जो कोमल है, उसकी हत्या कर दी है धर्मराज युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने। और जब वह देखता है दुर्योधन को खाली हाथ खून सने कपड़ों के साथ रथ के समीप खड़े हुए, तब उसे पता चल जाता है, वह जान जाता है कि युद्ध यहाँ समाप्त हुआ और वह अपने धनुष को तोड़कर वन की ओर बढ़ जाता है। वन की ओर बढ़ना भी एक प्रतीकात्मक है, क्योंकि वन में हम जानते हैं कि वन में पशु रहते हैं और अपनी पिता की मृत्यु, अपने पिता की हत्या और दुर्योधन की यह स्थिति देखकर वह अपना धनुष तोड़ देता है और वन की ओर चला जाता है और ऐसा उबल पड़ता है अर्ध सत्य युधिष्ठिर के अर्ध सत्य से कि अपनी चपेट में वो सबको ले देना चाहता है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं वह उस चपेट में कहीं ना कहीं उस चपेट में आते हैं। संजय आते हैं उस जंगल में, तो वो संजय पर हमला करता है, संजय का गला दबा देता है। उन्हें समझता है कि यह पांडव योद्धा है। उसी बीच आते हैं एक वृद्ध याचक, तो उस वृद्ध याचक का गला दबा देता है और उसकी तो हत्या ही कर देता है। तो अश्वत्थामा एक बिल्कुल पशु वृत्ति उनमें समा गई है और एक तरह से अंतिम जीवन का उनका लक्ष्य बन गया है केवल वध और प्रतिशोध। हाँ, उसे यह पता नहीं है कि वो जो कर रहा है अपने वृद्ध याचक के साथ, संजय के साथ, वो क्या कर रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है उसके मस्तिष्क में कि उसे बदला लेना है और बदला लेना है पांडवों से। लेकिन किस तरह लेना है, किस रास्ते से होकर जाना है, ये उसे नहीं पता है। नीति, नियम, धर्म, इन सब को वो छोड़ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह युद्ध में धर्म की अवहेलना हुई, उसने अश्वत्थामा के मन में जो कोमल था, जो शुभ था, उसकी हत्या कर दी है। वह बुद्ध याचक की हत्या कर देता है और पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाता है। उस वक्त जब पांडव जीत कर अपने शिविरों में जाते हैं थके हारे, तब वह शिविर में जाता है और शिविर में पहुंचकर धृष्टद्युम्न की निर्मम हत्या कर देता है, शिखंडी की हत्या कर देता है। वहां कई बूढ़े बच्चे हैं, उन पर वार करता है, महिलाएं हैं, उन पर वार करता है। और इतना ही नहीं, उसका लक्ष्य यहाँ तक कि उत्तरा का गर्भ है जिसमें अभिमन्यु का संतान पल रहा है। वह एक तरह से बिल्कुल निर्मूल कर देना चाह रहा है पांडवों को, लेकिन उत्तरा उस वक्त बच जाती है और वह वापस आता है। किंतु उसके मन का प्रतिशोध कम नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बावजूद, पांडव शिविर पर हमला करने के बावजूद, अपने पिता की जिसने हत्या की धृष्टद्युम्न, उसकी हत्या करने के बावजूद उसका जो प्रतिशोध की जो ज्वाला है, जो उसमें सुलग रही है, वो कहीं ना कहीं अब भी जल रही है और वो चाहता है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना। और अंतिम हथियार के रूप में, अस्त्र के रूप में, वह छोड़ता है अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर। इसी वक्त व्यास आते हैं। व्यास एक, उनका चरित्र इस नाटक में है, लेकिन वो साक्षात एक पात्र बनकर मंच पर नहीं आते, केवल उनकी आवाज आती है और व्यास बताते हैं, समझाते हैं अश्वत्थामा को कि अपना ये अस्त्र तुम वापस ले लो। यदि तुमने ये नहीं लिया ब्रह्मास्त्र, तो वहां से अर्जुन ने भी छोड़ दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है रक्षा तो करनी है। और जब ये दोनों ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड में टकराएंगे, तब हानि केवल और केवल मानवता की होनी है, इंसानियत की होनी है। व्यास कहते हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया जल जाएगी, धरा बंजर हो जाएगी और कई वर्षों तक इस पर अन्न नहीं उगेंगे। इसके बावजूद अपनी पशुता में इतना आगे बढ़ चुका है अश्वत्थामा कि वह बिल्कुल मना कर देता है ये अपना हथियार, अपना अस्त्र वापस लेने से। हालांकि भगवान कृष्ण उत्तरा की रक्षा करते हैं और इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उन्हें बचा लेते हैं, किंतु शापवश सजा देने के रूप में उन्हें सजा देते हैं और एक तरह से श्राप देते हैं ईश्वर अश्वत्थामा को कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक
उसके शरीर पर हजारों घाव पनपते रहेंगे, पीप और मवाद बहते रहेंगे। एक पशु की तरह, एक जंगली पशु की तरह, रोगी पशु की तरह वह जीवित रहेगा और उन दुखों को हमेशा सहन करता रहेगा। अश्वत्थामा अभिशप्त है, वो सहन भी करता है, लेकिन उसका पात्र इतना सशक्त है कि इतना इतना भयंकर श्राप भोगने के बावजूद वह जो उसकी सोच है कि यह जो पूरा युद्ध है और इसका सबसे बड़ा जो दोषी है वो भगवान स्वयं ईश्वर को मानता है, उससे वो अडिग है, उस पर वो अडिग है और अंत तक अडिग रहता है। जब प्रभास तीर्थ में प्रभु एक झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनका अंतिम समय पास है और वह व्याध आता है और प्रभु के रूप में वह एक मृग को देखता है वहां, और मृग समझकर वह हथियार चलाता है, तीर चलाता है, और उस वक्त प्रभु के शरीर से रक्त के बजाय पीप बहता है। वह सड़ा हुआ पीप, वह दुर्गंध देता हुआ पीप जैसा अब तक अश्वत्थामा के शरीर से बहता था। और जब अश्वत्थामा ये देखता है कि प्रभु के शरीर से वही पीप बह रहा है, वही दुर्गंध देता हुआ पीप, वही मवाद जो उसके शरीर से बहता है, तब उसे भान होता है कि जो कष्ट प्रभु ने उसे दिए हैं वो कष्ट तो प्रभु स्वयं भोग रहे थे। यानी इस युद्ध में जितनी भी पीड़ाएं लोगों ने सही है, चाहे वो कौरव वंश ने या पांडव वंश ने, उस पीड़ा को कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण अपने आप में भोग रहे थे। और अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ये देखता है तब उसका हृदय परिवर्तन होता है। वह एक पशु से, एक पशु वृत्ति से एक आस्थावान बन जाता है और वह आस्थावान बनने के साथ ही इस कृति में आगे बढ़ता है और उसके पात्र का अंत होता है। तो अश्वत्थामा जो अनास्था से घिरा हुआ था, पशुत्व जिस पर हावी था, वह युद्ध एक किस प्रकार एक आम इंसान को, आधुनिक इंसान को पशुता की ओर ले जाती है, उसका बहुत बड़ा प्रतीक है। के शिविर पर हमला करने के बावजूद, संजय का गला दबाने के बावजूद, वृद्ध याचक की हत्या करने के बावजूद, कहीं ना कहीं इस कृति पढ़ने के बाद एक संवेदना अश्वत्थामा के साथ पाठकों की जुड़ी रहती है। क्योंकि जो रचनाकार शुरुआत में जो कहते हैं कि जो शुभ था, कोमल था, वह हार गया, वह कहीं ना कहीं भी अश्वत्थामा के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा फिर से वही बात दोहराता है कि मेरे अंदर जो शुभ था, जो कोमल था, उसकी हत्या युद्ध के बीच कहे गए अर्धसत्य ने कर दी है। और उसके बाद जो उसका रूप, एक विकराल रूप हमारे सामने आता है, वह युद्ध की विभीषिका और युद्ध के रौद्र रूप लेकर हमारे सामने आता है, और इसी के प्रतीक के रूप में अश्वत्थामा हमारे सामने आते हैं। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है इस नाटक का, यूसु। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, यूसु जो हैं वे पांडव की ओर से लड़े। वे हैं तो गांधारी और युधिष्ठिर के पुत्र, लेकिन उन्होंने तय किया पांडवों की ओर से युद्ध करने की। क्यों? क्योंकि वे सत्य का साथ देना चाह रहे थे। इस नाटक में यूसु आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। वह बुद्धिजीवी वर्ग जो हर स्थिति में सत्य का साथ देता है, यह आशय रखा जाता है। देता है नहीं देता है ये तो बात की बात है, लेकिन किसी भी बुद्धिजीवी से यह आशय जरूर रखा जाता है, यह उम्मीद जरूर रखी जाती है कि वह सत्य का साथ देगा, असत्य के विरुद्ध। सत्ता चाहे किसी की भी हो, शीर्ष पर चाहे कोई भी बैठा हो। और आधुनिक भारत के निर्माण में बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, आधुनिक या फिर आजादी के बाद आए कई बुद्धिजीवी वर्ग हो। तो एक बुद्धिजीवी से यही आशय रखा जाता है कि वह सत्य का साथ देगा, और इसी तरह इसी सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है युसुफ। वह सत्य का साथ देता है और पांडवों की ओर से लड़ता है, लेकिन मिलता क्या है उसे?
जिस प्रकार से उसे दोनों पक्ष नकार देते हैं। इस स्थिति में हम उन्हें कौरव तो नकारते हैं, जाहिर सी बात है, व्यवहारिक है, कौरव तो नकारेंगे ही क्योंकि वो पांडव की ओर से लड़े हैं। लेकिन उनको उनका साथ देने वाला पांडव के वर्ग में भी, पांडवों में भी कोई नहीं है। और यही परिणाम अंतिम परिणति के रूप में वे गूंगे हो जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। जब वे कौरवों का साथ देने के लिए जब सोचते हैं और जब कौरवों के युद्ध में साथ देने के बाद जब वापस कौरव नगरी लौटते हैं, तब जो प्रजा है वो प्रजा उन्हें दैत्याकार, शिशुभक्षी, ना जाने किन किन नामों से पुकारती है। ये सहन करते हैं। पूरा एक वाकया है ये, जब यूसुफ पधारते हैं, जब आते हैं जब कौरव नगरी में, तब किस प्रकार से पूरी कौरव नगरी में एक हाहाकार बचा हुआ है। सब अपने अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि कोई दैत्याकार राक्षस आ रहा है। खैर, ये तो प्रजा है और उनका नाराज होना लाजमी भी है। लेकिन जब अपने घर आते हैं, अपनी माता से मिलते हैं, गांधारी से, तब क्या होता है? गांधारी के पांव छूने के लिए वो नीचे झुकते हैं। तब गांधारी उन्हें आशीर्वाद नहीं देती। गांधारी उन्हें कहती है कि बेटा, भुजाएं तुम्हारी यह पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने ही बंधुओं का वध करते करते? यूसुफ चुप रहते हैं। फिर गांधारी कहती हैं कि पांडवों के शिविर के वैभव के बाद तुम्हें यह अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। व्यंग बाण एक के बाद एक गांधारी छोड़ रही हैं। यूसुफ फिर भी चुप रहते हैं। फिर गांधारी कहती हैं कि विदुर, ये चुप क्यों है? ये थका होगा, इसे फूलों की सैया दो। ये दुर्योधन थोड़ी है जो सागर के कीचड़ में जाकर सोए। इतना कहकर गांधारी बिना आशीर्वाद दिए वापस अपने अंतःपुर में लौट जाती हैं और यूसुफ अपने भाग्य के साथ वहीं जमीन पर पड़ा रहता है और विदुर से पूछता है कि क्या किया माता ने? विदुर, माता ने क्या किया? इतना ही नहीं, वहां पर एक घायल सैनिक है जिसकी जबान कटी हुई है और वह बिल्कुल मृत्यु के नजदीक है। और ऐसे में विदुर कहता है कि यूसुफ जाओ, मरते को जल दो। तब यूसुफ जाते हैं और उस सिपाही को अपनी गोद में लेते हैं और पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह कौरव सेना का सिपाही जब देखता है यूसुफ को कि ये तो हमारे खिलाफ थे, तब वह एक झटके से पानी पीने से मना कर देते हैं कि मैं इनके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। अंदाजा लगाइए उस वक्त यूसुफ की मनस्थिति क्या होगी। प्रजा ने नकार दिया, सैनिक, माता ने नकार दिया और एक मृत प्राय व्यक्ति जो बिल्कुल मरण शैया पर है, वह जल पीने तक से मना कर दे रहा है। वह स्थिति क्या होगी, यूसुफ की मनस्थिति क्या होगी? उसे क्यों ये सब भोगना पड़ रहा है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया। ये तो है कौरव, ये तो कौरवों का कुल है, ये तो कौरव वंश है, ये तो कौरवों की नगरी है, कौरव नगरी है। किंतु समय के साथ जब वह पांडवों के शिविर में जाता है, पांडवों की ओर जाता है और धर्मराज जब राज संभाल लेते हैं, वहां भी उसके साथ कोई न्याय नहीं होता। भीम रोज यूसुफ का मजाक उड़ाता है, गांव के लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और इन सब से वह एक दिन इतना आजिज आ जाता है कि अपनी आत्महत्या कर लेता है। बहुत ही करुण परिणति होती है यूसुफ की। यानी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है और जिसने सत्य का साथ दिया है, और सत्य का साथ देने के लिए एक व्यक्ति को कितना कुछ भोगना पड़ता है,
आधुनिक युग में, यानी पक्ष चाहे गलत का हो या सही का हो, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति यदि सत्य की राह पर चलना चाहता है तो किस प्रकार दोनों ही पक्ष, दोनों ही सत्य और अहिंसा, सत्य और गलत, सही और गलत दोनों ही पथ किस तरह उसे निराश करते हैं, उस पथ पर कितना कुछ भोगना पड़ता है एक व्यक्ति को, उसको इस चीज को, उस वास्तविकता को भारती जी ने युसु के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से पाठकों के सामने लेकर आए हैं। तो अगला पात्र है गांधारी का। जैसा कि मैंने कहा कि गांधारी का पात्र यहाँ पर बहुत मुखर है, वह चर्चा करना जानती है, बोलना जानती है और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि वो प्रतीक है एक माता का, जिसने अपने संतानों को खोया है और जिसने रोज अपनी नववधुओं, अपनी वधुओं के सिंदूर पोछे हैं, चूड़ियां निकाली हैं। एक माता गांधारी इतना कुछ सहने के बावजूद चर्चा करने के लिए तैयार है। जब पहले अंक में ये धृतराष्ट्र और गांधारी बैठी हैं, साथ में विदुर हैं, और विदुर जब भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं कि जब उन्होंने चिताया था, उन्होंने धृतराष्ट्र को चिताया था कि युद्ध मत करो और इसका परिणाम बहुत ही विभत्स होगा, लेकिन जब अपने अंधत्व के कारण, अंधत्व यानी आंखों के अंधत्व के नहीं, अपने विवेक के अंधत्व के कारण जब युद्ध करते हैं, तब क्या कुछ उसका परिणाम हो सकता है, यह बात भगवान कृष्ण बहुत पहले आकर कर चुके थे। और यह सारी चर्चा जो है वहां पर बैठी गांधारी सुनती है। और जब विदुर प्रभु कहकर पुकारते हैं, तब गांधारी कहती है कि प्रभु मत कहो, जिसे तुम कहते हो प्रभु, उसने मर्यादा को जब चाहा अपनी ओर किया और अपने हिसाब से बदला है। और वहीं पर जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो बाहरी यथार्थ स्वीकार नहीं कर पाया, मैं तो अंधा था, जन्मांध, और तब गांधारी कहती है कि मैं नहीं थी जन्मांध, मैं बाहरी वस्तु जगत को मैंने बहुत अच्छी तरह से जाना है और समझा है। और यह सारी चर्चा के दौरान हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वह सोच, एक समझ गांधारी में है, किंतु युद्ध की जो आग है, युद्ध की जो लपेट है, और युद्ध में जिस तरह लोग मारे गए और गांधारी के तो अपने पुत्र मारे गए, वह दुख उसे किस तरह घेर लेता है, और सब कुछ समझने बूझने के बावजूद वह किस प्रकार यीशु भगवान कृष्ण के विरोध में जाती है और उनके खिलाफ एक से बढ़कर एक कटाक्ष करती है। यह दर्शाता है कि युद्ध जिस प्रकार से सबको प्रभावित कर रहा है, उसी प्रकार से यह युद्ध गांधारी को भी प्रभावित कर रहा था और उसके विवेक और उसकी बुद्धि पर भी एक पर्दा डाले हुआ था। जो पर्दा उन्होंने आंखों पे बांध रखा है गांधारी ने, वही पर्दा उन्होंने अपनी सोच पर भी, उनको वह पर्दा पड़ा हुआ है और इसी पर्दे के चलते वे ईश्वर पर कटाक्ष करती हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, चरम उत्कर्ष आता है जब वह प्रभु को श्राप देती हैं। जब विदुर उनसे कहते हैं कि चलिए अंतिम संस्कार के लिए युद्ध स्थल पर चलते हैं, तब वह युद्ध स्थल पर जाती है और देखती हैं अपने पुत्र दुर्योधन का अस्थि शेष। और जब वह अस्थि शेष अपने पुत्र का देखती है, तब माता का हृदय फट जाता है और तब गांधारी प्रभु श्री कृष्ण को जी। और जैसा कि मैंने कहा कि चरम उत्कर्ष नाटक का, और जब अस्थि शेष देखती है अपने पुत्र का, तब उनका कलेजा फट जाता है और वे प्रभु को श्राप देती हैं। क्या कहती हैं कि तू यह पड़ा है कंकाल पुत्र का, किया है यह सब कृष्ण तुमने किया है, सुनो आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं कृष्ण सुनो,
तुम यदि चाहते तो रुक सकता था यह युद्ध। मैंने प्रसव नहीं किया था यह कंकाल। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया था निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम उनका विनाश करके वर्षों बाद किसी जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे। यह श्राप गांधारी भगवान कृष्ण को देती है, प्रभु को देती है। और होता यह है कि प्रभु इसे स्वीकार भी कर लेते हैं बड़े ही आदर के साथ। और तब गांधारी को भान होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और तब वे कहती हैं, यह क्या किया तुमने? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। और भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। तब गांधारी रोते हुए कहती है, यह क्या किया विदुर, मैंने यह क्या किया। तो गांधारी का यह पूरा चरित्र एक माता के रूप में उभर कर आया है, जो पुत्र शोक से जर्जित है, और इतना अंधत्व उस पर छा गया है कि उसे सही गलत का फर्क वह भूल चुकी है। और ईश्वर स्वयं भगवान कृष्ण को इसके लिए दोषी मान देती है उनको, और श्राप दे देती है। और जाहिर सी बात है प्रभु उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं। और भगवान कृष्ण का जो चरित्र यहाँ पर आया है, तो इसमें कुछ पात्रों की जो संरचना भारती जी ने की है वो कुछ मौलिक पात्र भी है, जैसे कि प्रहरी, और एक है वृद्ध याचक। जो प्रहरी हैं वे आम नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके संवादों से यह बात बाहर भी आती है। शुरुआत में ही वे घोषणा करते हैं, वे बातचीत करते हैं, और पूरे इस युद्ध का जो दोषी है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। और जब सत्ता बदल जाती है और धर्मराज सत्ता पर आ जाते हैं, तब भी उनका संवाद है, और जब कहते हैं कि इससे अच्छा तो वो अंधे थे जो हम पर राज करते थे, कम से कम वो राज तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई राज ही नहीं कर रहा। क्यों राज नहीं कर रहा? क्योंकि जीतने के बाद भी युधिष्ठिर का जो पूरा कुनबा है वह कहीं ना कहीं युद्ध के बाद थका हारा और अपने पद से डिगा हुआ है। युधिष्ठिर स्वयं इतने हारे हुए हैं, इतने परेशान हैं कि राजपाट बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं, और एक समय वो भी आता है कि वह सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तो प्रहरी की यह बात कि इससे अच्छे तो वो अंधे थे जो कम से कम राज तो करते थे, यह बात दर्शाता है कि जनता को क्या चाहिए, आम नागरिक को क्या चाहिए। आम नागरिक को एक सशक्त नेतृत्व चाहिए, ऐसा नेतृत्व जो उनके सुख दुख के साथ जुड़ पाए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जुड़ पाए। इसी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रहरी करते हैं, जो शुरुआत से लेकर अंत तक कहीं ना कहीं बीच में आते हैं। इसी तरह का एक पात्र है यहाँ पर वृद्ध याचक का। वह भविष्य बताता है। शुरुआत में उसने भविष्य बताया था कि कौरव जीतेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, कौरव तो हारते हैं। और पहले अंक में जब वो आता है दुर्योधन की जय, गांधारी की जय कहते हुए, तब गांधारी उससे पूछती है, धृतराष्ट्र भी पूछते हैं, तुमने तो कहा था कि कौरव जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वो उत्तर देता है, यहाँ पर जो वो उत्तर देता है
उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस वृद्ध याचक के माध्यम से स्वयं रचनाकार बोल रहे हैं। वह कहते हैं, वृद्ध याचक कहता है कि मर्यादा जब भी टूटी है तब नक्षत्रों की दिशा बदल गई है, और उसे बदलता है मानव निर्णय। हमारा खुद का निर्णय इतिहास को बदलता है। इतिहास आज में मौजूद है, क्षण में मौजूद है। आज हम जो निर्णय ले रहे हैं उसमें मौजूद है। इतिहास बनता है आज से, अभी से। इसीलिए वृद्ध याचक स्वीकार करता है कि उसने जो बात कही थी, जो घोषणा की थी कौरवों की जीतने की, वह गलत थी। और आज जो हो रहा है, आज जो जो क्षण बीत रहा है, वही क्षण सत्य है। और जब क्षण की बात करते हैं तो अस्तित्ववाद भी हमारे सामने आता है। और जिस वक्त 1954 के आसपास यह कृति रची गई, उस वक्त उसका बहुत बोलबाला था अस्तित्ववाद का, जिसमें क्षण की बात है, एक व्यक्ति के अस्तित्व की बात है। तो वही अस्तित्ववादी दर्शन भी हमें इस वृद्ध याचक के संवादों में मिलता है। और यह वृद्ध याचक, मैंने जैसा कहा कि अश्वत्थामा उसकी हत्या कर देता है, लेकिन हत्या के बाद भी वह नाटक में एक प्रेत बनकर आता है। और जब जो व्याध, प्रभु की जो हत्या, प्रभु पर जो तीर चलाता है, वह व्याध के रूप में भी यही वृद्ध याचक है। और वह व्याध भी यूं ही नहीं आता, प्रभु स्वयं उसे आदेश देते हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक यह वृद्ध याचक भी इस नाटक में सम्मिलित है, और अपनी अपनी बात जहां उसे लगता है वह कहता जाता है। और कहीं कहीं पर, जैसा कि मैंने कहा, हमें आभास होता है कि स्वयं रचनाकार आकर अपनी टिप्पणी बीच में देते हैं। तो जो प्रमुख पात्र थे, हमने उनकी चर्चा की, और वह किस तरह आधुनिक मानव का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने यह जानने की कोशिश की। और यह सारे पात्र जो हैं, यही नाटक को लेकर आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी भूमिका में, अपने अपने संवादों के साथ। इसका शिल्प बड़ा, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि वह बस थोड़ी ही समय में हम समय जल्दी की से इसके चिंता शिल्प मत की। करें इकराम। हाँ, अच्छा, समय जी की जी। चिंता मत करें। हाँ जी, आराम से बात करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि शिल्प बहुत महत्वपूर्ण है, और बात कहना और किस ढंग से कहना, ये मायने रखता है। बात कहना तो लोग कहते ही हैं, लेकिन किस ढंग से कहते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। किस रूप में उसे पिरोते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। तो धर्मवीर भारती जी ने बात को जिस रूप में पिरोया है, जिस रूप में वो लेकर आए हैं, वह हमें शिल्प से पता चलता है। जहां तक भाषा की बात है, तो भाषा काव्यात्मक है। जैसा कि रंजान सर ने शुरुआत में ही कहा कि एक नए तरह की कृति से साक्षात्कार होगा, वो है काव्य नाटक। तो नाटक तो है, लेकिन वह कविता के माध्यम से है, और वो भी छंद मुक्त कविता। हालांकि नाटक तो काव्य रूप में ही हुए हैं, चाहे वह पुराने संस्कृत नाटक हो, या यूनानी नाटक हो, या अंग्रेजी नाटक हो, वे कविता के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। लेकिन आधुनिक युग में जब हम आते हैं, और आधुनिक साहित्य जब रचा जा रहा था, और जो रचा जा रहा है, इसमें जो काव्य नाटक जो रचे गए, उनकी भाषा काव्य नाटक की काव्यात्मक तो है, लेकिन वह छंद मुक्त हो गए। यानी छंदों का जो बंध था वो टूट गया, और वह बोलचाल की थोड़ी नजदीक हो गई। बिल्कुल बोलचाल की भाषा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बोलचाल की बहुत नजदीक हो गई। और उसके शब्द बिल्कुल खड़ी बोली के बिल्कुल आसानी से समझ में आए, ऐसे रहे। जितने भी मैंने दृष्टांत यहाँ पर पढ़े हैं, वे सारे आसानी से समझ में आए ऐसे हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं है, बोलचाल के बहुत करीब है, बोलचाल की शब्दावली है, बिल्कुल बोलचाल की भाषा नहीं है, शब्दावली है, काव्यात्मकता है, इसमें लय है। और भारती जी स्वयं एक जगह बताते हैं कि इस नाटक का जब मंचन जब होता है, तब दुविधा इस बात की होती है कि जो पात्र हैं वो जब संवाद बोलते हैं, तो या तो वे बिल्कुल कविता की भांति ना बोले,
क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो कविता की तरफ पढ़ेंगे, काव्य पाठ करेंगे तो जिसकी जो नाटकीयता है और जो संप्रेषणीयता है उसमें दोष आएगा। परेशानी आ रही थी कि या तो वे जो नाटक के जो संवाद है उन्हें बिल्कुल कविता की तरह ना पढ़े, क्योंकि कविता की तरह अगर पाठ करेंगे तो जो पाठक तक जो बात पहुंचनी है वो उस रूप में नहीं पहुंच पाएगी, उस संप्रेषणीयता में बाधा आएगी। और दूसरी ये भी बात है कि जब वो अपनी बात कह रहे हों पात्र, तब बिल्कुल बोलचाल की भाषा में भी ना कहे जैसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि इससे काव्य नाटक और उसकी काव्यात्मकता पर असर होगा। तो रास्ता कौन-सा होना चाहिए? तो रास्ता होना चाहिए वह मध्य मार्ग होना चाहिए, जिसमें काव्यात्मकता भी बची रहे, लय भी हो और आसानी से पाठकों को समझ में भी आए। और जितना भी हमने पढ़ा है इस नाटक के बारे में, जितना हमने थोड़ा बहुत देखा है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, इस भाषा की इस विशेषता का जो इसकी काव्यात्मकता है, वह भी इसमें बची है और इसकी संप्रेषणीयता में भी कहीं कोई कमी नहीं आती। ये इस नाटक की मंचन में खास पाया गया है। दूसरा संवाद की बात करें तो इसके संवाद पात्रानुकूल हैं। हम देखते हैं कि जब अश्वत्थामा का संवाद जब आता है पशु का उदय नामक अंक में, तब हम पाते हैं कि उसका संवाद बहुत बड़ा है अश्वत्थामा का, 2 से ढाई पेज तक। और जब प्रहरी जब बात करते हैं और उनके जो संवाद है वो बिल्कुल एक-एक शब्दों के भी संवाद है। आस्था, अनास्था, मृत्यु, भय, सम इसका परिणाम ये है और इसका अर्थ ये है कि जहाँ-जहाँ पर भारती जी को लगा है कि बात बात केवल एक शब्द से बन रही है, उन्होंने केवल एक शब्द का भी प्रयोग किया है संवाद में। और जहाँ उन्हें लगा है कि बात विस्तार से होनी चाहिए, वहाँ पर उन्होंने खुलकर इसकी छूट भी ली है। और शुरुआत में गीत है, अंकों के अंत में गीत है, मध्य में गीत है, तो एक रोचकता भी बनी रहती है। और कई जगह जब हमने नाटक जो देखे और मंचन हुआ है इसका, तो गीतों के साथ नृत्य भी प्रस्तुत किया गया है, तो यह भी पाठकों को बांधे रखने में मदद करता है। तो संवाद, संवाद के साथ गीतों का प्रयोग और नाटक निर्देश जो जहाँ पर भारती जी को लगा है उन्होंने नाट्य निर्देश किए हैं अपने हिसाब से, वह भी बहुत ही प्रसंग के साथ चलते हैं। दूसरा प्रतीक, प्रतीक और बिंब की बात करें तो इस नाटक में प्रतीक और बिंब भरे पड़े हैं। शुरुआत में ही जब प्रहरी पहरा देते हैं कौरव कौरवों के शिविर का, तब पूरा अंधेरा छाने लगता है, रोशनी गायब हो जाती है। दिन के उजाले बिल्कुल दिन भरे दिन में इस तरह का अंधेरा होना सबको आश्चर्यचकित करता है। तब पता चलता है कि आसमान पर गिद्ध मंडरा रहे हैं। वह गिद्ध सीधे बढ़ जाते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। इससे आगे भारती जी यह उल्लेख नहीं करते कि गिद्ध जाते हैं, क्या करते हैं। ये तो व्यवहारिक है कि 17 दिनों से 18 दिनों से युद्ध चल रहा है, तो नरभक्षी गिद्ध वहां क्या करने गए होंगे। तो यह गिद्ध प्रतीक है युद्ध की भयावहता का, युद्ध के दुष्परिणामों का। इसी तरह जब दुर्योधन हारते हैं द्वंद्व युद्ध में भीम से, और हालांकि उस वक्त उनकी जान नहीं निकलती है, उनके प्राण बचे हुए होते हैं और वे जंगल में पड़े हुए हैं, तब उनको एक सियार दिखता है झाड़ियों के बीच से। रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है ये। एक सियार उन्हें वहां से देख रहा होता है। इससे आगे भी भारती जी ये नहीं बताते कि सियार आता है बाद में और उनको नोच के खा जाता है। सियार भी प्रतीक है युद्ध की विभीषिका का, युद्ध के दुष्परिणामों का। इसी तरह जब अश्वत्थामा अपना धनुष तोड़ता है, वह भी प्रतीक है उन सत्य और आस्था के टूटने का, उस शुभ और कोमल के बिखरने का जो एक आम नागरिक के अंदर होता है। और किस तरह एक सत्य एक आम नागरिक के अंदर मौजूद शुभ, कोमल और सत्य को तोड़ देता है, बिखेर देता है, उसका प्रतीक बना है वह धनुष। इसी तरह से एक वाकया आता है मोर पंख का और कौवे के पंख का। जब
अश्वत्थामा कौरव को नहीं, पांडव शिविर में जाता है पांडवों की हत्या करने के लिए, पांडव पुत्रों की हत्या करने के लिए। तब उसके हाथ लगता है वह कौवे का पंख, और वहीं पर संवाद है कि इस देखना है कौन जीतता है, मोरपंख या ये। तो जो यहाँ पर जो कौवे का जो पंख है वो अधर्म का प्रतीक है, और जो मोर पंख है वो धर्म का प्रतीक है। और इसका तो पूरा शीर्षक ही प्रतीकात्मक है, अंधा युग, यानी उस विवेकहीनता का प्रतीक है अंधा युग। यह शीर्षक जो लगातार मानवता पर, मानव सभ्यता पर द्वापर युग से आज कलयुग तक मंडरा रहा है। इसी प्रकार इसके और भी शीर्षक, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, और अंतिम जो इसका अंक है उसका नाम भारती जी देते हैं विजय एक क्रमिक आत्महत्या। बहुत ही सशक्त टाइटल है, ये शीर्षक है, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, यानी जो जीते हैं वे भी सुखी नहीं है, वे भी खुश नहीं है। धर्मराज जीत तो गए हैं अपने पूरे कुनबे के साथ, लेकिन उनका पूरा कुनबा मानो बिखरा हुआ है। कोई शत-विक्षत है, कोई पागल हुआ है, कोई समय से पहले वृद्ध हो चुका है। स्वयं युधिष्ठिर राजपाट में उनका मन नहीं लग रहा है, एकदम बेचैन रहते हैं, और एक समय के बाद तो वे वन में चले जाते हैं। यानी युद्ध किस तरह से दुष्परिणामों को लेकर आता है, और युद्ध किस प्रकार हानि पहुंचाता है दोनों पक्षों को, इसका इसकी इस इसकी वानगी हमें अंधा युग के माध्यम से यहाँ पर होती है। तो यह प्रतीक है, विजय एक क्रमिक आत्महत्या भी एक प्रतीक है कि विजय होने के बाद भी वह सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अंत की तरफ ही बढ़े हैं, कोई नया सर्जन नहीं हुआ है। बिंब काफी सशक्त हैं, बिंबों से भी यह पूरा नाटक भरा हुआ है। कई बिंब उभर कर बाहर आए हैं, स्पर्श बिंब है, यहाँ पर श्रव्य बिंब है, दृश्य बिंब है, और इसके जो युद्ध का जो वर्णन है, जब हम एक जगह से हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जब पांडवों के शिविर में पहुंचता है, और जिस तरह से वो धृष्टद्युम्न की हत्या करता है, उनकी कटपट्टी पर पैर रखता है, और धृष्टद्युम्न के दोनों आंखों के गोले बाहर आ जाते हैं, और उस गड्ढे में, आंखों के जो गड्ढे हैं उनमें खून उबल पड़ता है। यह वाकया वाकई में एक आम पाठक को विचलित करता है। और मैम जिसकी रंजन सर ने बात भी की, जिनकी डॉक्टर मृदुला पारेख मैम भी बताती हैं कि एमए में हमारा अंधा युग चलता था हमारी यूनिवर्सिटी में, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में। और मैम से जब चर्चा हो रही थी इस कृति के बारे में, तब मैम बताती हैं कि जब वो पढ़ा रही थी जब एमए के बच्चों को, और जब इस विशेष वाक्य का वो जब इस्तेमाल कर रही थी, उसका वर्णन कर रही थी कि किस प्रकार अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न की हत्या करता है, तो वहां पर जो बच्चे बैठे थे वो सारे, अधिकतर बच्चों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, और एक बच्ची तो बकायदा बाहर उल्टी करने के लिए दौड़ी। यानी ये वर्णन किस तरह हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। और तब मैम बताती हैं, मैम कहती हैं कि आज मेरा पढ़ाना और आप लोगों का पढ़ना सफल हुआ, और साथ में रचनाकार की यह कृति भी सफल हुई, क्योंकि रचनाकार पाठकों तक, दर्शकों तक जो पहुंचाना चाहते थे उसे बहुत ही कुशलता के साथ उन्होंने पहुंचाया है। और ऐसे ही अनेक बिंब हमारे सामने आते हैं, अनेक दृश्य हमारे सामने आते हैं, जो साक्षात हमें उस युद्ध, उस विभीषिका का साक्षात्कार कराते हैं। तो प्रतीक बिंबों से यह भरा हुआ है। इसकी मंचीयता तो बहुत ही उत्कृष्ट रही है। जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में इब्राहिम अलका जी ने 1960 में इसका मंचन किया। मंचन तो लगातार होते रहे, लेकिन एक विशेष इसमें मैं जोड़ना ये चाहूंगा कि 2011 में 50 सालों बाद
उसी फिरोज शाह कोटला फिर से इसका मंचन हुआ और इसके इस बार निर्देशक थे भानु भारती जी, बहुत ही माने हुए निर्देशक हैं। तो उसी जगह पर जहां पर इब्राहिम अलका जी ने फिरोज शाह कोटला के मैदान पर, खुले मैदान पर इसका मंचन किया, वहीं पर 50 सालों बाद मंचन करते हैं भानु भारती जी। और तय होता है कि यह जो नाटक है वो 3 दिनों तक चलेगा, ये तय होता है। लेकिन ये नाटक चलता है पूरे 7 दिनों तक। इतना जोश था उन दर्शकों में, विशेषकर युवाओं में इतना जोश था कि इस नाटक की अवधि को बढ़ाना पड़ता है, यानी समय बीतते रहे लेकिन इसकी लोकप्रियता, इसकी मंचीयता में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद, मोहन महर्षि डायरेक्टर हैं रंगमंच के, उन्होंने जब मॉरिशस में इसका जब मंचन किया तब उसमें काफी प्रयोग किए इन्होंने और पार्श्वध्वनि का खूब उपयोग किया। और एक प्रयोग ये किया कि धृतराष्ट्र से कौरव, हारी हुई कौरव सेना का वर्णन करवाया। तो यह सारी जो पार्श्वध्वनि है और एक प्रयोग करते हुए, नाटक में तो नहीं है ये, लेकिन एक प्रयोग करते हुए मोहन महर्षि जी ने जिस प्रकार से धृतराष्ट्र के माध्यम से हारे हुए कौरव का परिचय करवाया, उसने पाठकों पर एक अलग ही तरह का भाव छोड़ा। और वो जो पार्श्वध्वनि ध्वनि का जो प्रयोग किया, उसने एक तरह से पूरे वातावरण को सम्मोहित किया और यह प्रयोग बहुत सफल हुआ। इसी प्रकार से जब इराक युद्ध के दौरान जब इसका मंचन हुआ, तब जो प्रहरी भाला लेकर चलते हैं, उनके हाथों में बंदूक थमाए गए और हथियारों का प्रयोग किया गया। तो यह प्रयोग, यानी समय के साथ यह नाटक इतना विशिष्ट है और इतना लचीला है कि बहुत समय के साथ इसमें प्रयोग होते रहे और मंचीयता जो है अपने हिसाब से, समय के हिसाब से इसके मंचन में विविधता आती रही। इसमें काफी प्रयोग हुए और उन प्रयोग काफी सफल भी हुए और लगातार ये प्रयोग होते जा रहे हैं। और धर्मवीर भारती जी की धर्मपत्नी पुष्पा भारती जी, इसकी खास विशेषता यह भी बताती है कि यह नाटक इतना लचीला है कि समय के अनुरूप आसानी से ये ढल जाता है और अपनी सशक्त बात, अपना संदेश देने में सफल होता है। बहुत ही प्रासंगिक है यह नाटक और तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक समाज में युद्ध और विध्वंस हो। हम तो यही चाहेंगे कि ये प्रासंगिक ना रहे, क्योंकि कोई नहीं चाहता समाज में युद्ध हो, विध्वंस हो, अनास्था का, असत्य का साम्राज्य हो, विवेकहीनता हो, विवेक शून्यता हो। लेकिन युद्ध तो हो रहे हैं। और भारती जी ने, जैसा कि मैंने कहा, भारती जी ने शुरुआत में ही बता दिया है, नाटक की शुरुआत में ही, कि टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी मर्यादा उसको दोनों पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम तो कौरवों ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यानी दोषी केवल कौरव नहीं है, दोषी पांडव भी थे। भले ही वो सही थे, लेकिन जो जो व्यक्ति, विचार ये है कि जो जो व्यक्ति युद्ध में हिस्सा लेता है, जो जो राष्ट्र युद्ध में हिस्सा लेते हैं, चाहे वह सही हो या गलत हो, लेकिन हिस्सा लेना ही अपराध है। भारती जी का उद्देश्य यही है। युद्ध चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो, युद्ध आधुनिक समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए कभी भी योग्य नहीं हो सकता। और भारती जी के ही समकालीन कवि हैं, और जैसे मैंने सप्तक की बात की, दूसरे सप्तक के ही कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वरिष्ठ गांधीवादी कवि हैं। पंचशती नामक उन्होंने एक पूरा संग्रह उन्होंने रचा, और एक बृहत संग्रह रचा गांधी विचार को समर्पित करते हुए। वे कहते हैं कि यदि देश निशस्त्र भेजना तय करे तो पहला सैनिक हिंदी का ये कवि मरे। यानी देश यदि निशस्त्र सेना भेजना तय करता है
गोले बारूद के सामने, बंदूकों के सामने, परमाणु हथियारों के सामने, चाहे जो भी हो, अगर देश तय करता है, चाहे वो कोई भी देश हो, किसी एक देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात है, तो अगर तय करता है कि निशस्त्र उन गोले बारूद के सामने जाना हो, तो सबसे पहले जाएगा यह हिंदी का कवि, ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं। कितना बड़ा वाक्य है ये, कितने बड़े शब्द हैं ये, और उससे भी बड़ा कितना विशाल विचार है ये। यही तो है गांधी विचार, कि कोई चाहे कितने भी अपराध करे, चाहे कोई कितना भी अन्याय करे, अन्याय का बदला कभी अन्याय नहीं हो सकता। हम 2 बंदूक निकालेंगे, वो 4 निकालेगा, हम 1 बम फेंकेंगे, वो 4 फेंकेंगे, हम 50 फेंकेंगे, वो 100 फेंकेंगे। कहाँ है अंत? इस दुश्मनी, इस विध्वंस, इस लड़ाई, इसका कहीं पर भी कोई अंत नहीं है। जब तक ये हथियार रहेंगे, जब तक लोग आपस में भिड़ते रहेंगे, ऐसे विध्वंस, ऐसे युद्ध का इलाज एक ही है कि हथियारों का निर्मूलन हो। लोगों वंश साम्राज्यवाद की वृत्ति पर अंकुश लगे, तभी जाकर युद्ध समाप्त होंगे, तभी जाकर दुनिया इस विध्वंस से बाहर आ पाएगी, और तभी जाकर यह नाटक सफल होगा। माफ कीजिएगा, इस नाटक का जो संदेश है वह लोगों तक पहुंचेगा। जब तक युद्ध विध्वंस होता रहेगा, इस नाटक की प्रासंगिकता बनी रहेगी, और यह नाटक हमें यह भी बताता है, चेताता भी है, हमें चेतावनी भी देता है कि यदि समय रहते हम नहीं संभले, तो आगे परिस्थितियां और कठिन होने वाली हैं, और मानव सभ्यता पर जो आज खतरा मंडरा रहा है, चाहे वह परमाणु हथियारों का हो या कोई भी, वह हथियार वह परिणाम, वह संकट आगे जाकर और गहरा होगा। इसीलिए इसका संदेश यही है इस कृति का, कि वही शांति, वही अमन, वही चैन कायम हो, जो महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी चाहते हैं। और जब तक यह विध्वंस, यह हानि पहुंचती रहेगी, तब तक अंधा युग और अंधा युग के जैसे अन्य नाटकों, अन्य रचनाओं की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद इकराम। आपने बखूबी एक कृति का परिचय करवाया, और अंत में आपने जो बात की उसके उसका अनुसंधान आपके परिचय से इस प्रकार से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आप बामणा से हैं और वहां से उमाशंकर जी हमें प्राप्त हुए हैं उस गांव से। उन्हीं ने युधिष्ठिर के मुख में यह पंक्ति रखी है कि अहो जनानी चिर युद्ध श्रद्धा, अहो जनानी चिर युद्ध श्रद्धा। अरे, लोगों को युद्ध में कितनी श्रद्धा है, इतने युद्ध हुए, लेकिन और उसके कारण इतना अकल्याण हुआ समग्र मानव जाति का, फिर भी अभी रास्ता अपनाना चाहे तो युद्ध का अपनाते हैं। तो यह मानव इतिहास से कुछ सीखा है कि नहीं है? तो व्यंग में वो बोलते हैं अहो जनानी चिर युद्ध श्रद्धा। और जिस गांधी युग की आपने बात की और भवानी प्रसाद मिश्र की कविता का प्रयोग किया अंत में, तो वैसी ही कविता और उसी भाव के साथ उमाशंकर जी कहते हैं, हणो ना पापी ने द्विगुण बनशे पाप जगना, हणो ना पापी ने द्विगुण बनशे पाप जगना, लड़ो पापो सामे विमल दिलना गुप्त बढ़ती। हमें पापियों के सामने नहीं, पाप के सामने लड़ना है। और लड़ना माने इस लड़ाई से आगे की बात उन्होंने सोची है। और गांधी किस प्रकार से भवानी प्रसाद पर भी अपना विचार छोड़ गए, और उमाशंकर जैसे कवि पर भी, और धर्मवीर भारती जी ने इस प्रकार से युद्ध से परे होने की स्थिति की अपेक्षा कर ऐसा एक नाटक हमें दिया है। आपने भली भांति उनका परिचय करवाया, और आप जब बोल रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था
कि जैसे कोई लखनऊ से हमें हमारे साथ जुड़े हो। हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत खुश हो रहे थे, बीच में उनका मैसेज भी आया कि क्या हिंदी बोल रहे हैं। और मुझे, हम दोनों ने आकाशवाणी भूज में काम किया है, तो हमें ये भी लग रहा था कि जैसे कोई आकाशवाणी का उद्घोषक या फिर कोई समाचार पाठक जो है वो अपनी बात रख रहे हो। इस प्रकार से आप बहुत ही बखूबी आपने अपनी बात रखी, सर्जक परिचय करवाया, किस प्रकार से कृति ने अपना प्रभाव डाला है उसके लिए भी आपने दो वाक्या बताए, उसमें खासकर नेहरू जी का वाक्या भी आपने बताया। और एक एक पात्र को लेकर आप पहले कथा भी कह गए और फिर एक एक पात्र को लेकर जिस प्रकार से आपने स्पष्टताएं की, वो बातें, जैसे कि अश्वत्थामा की बात आपने की, युयुत्सु की। मुझे यहाँ कहना पसंद होगा कि युयुत्सु भी दासी पुत्र है, जो कि गांधारी से नहीं है, सुगंधा नामक दासी के वो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के। और देखिए, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए पाठक हैं, तो एक बात अलग से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विदुर भी दासी पुत्र हैं। वो भी व्यास व्यास से ही पुत्र हुए हैं, लेकिन दासी से हुए पुत्र हैं। तो जो रानियों के कुख से जन्मे पुत्रों ने न समझा, वो दासी के पुत्रों ने समझा है। दोनों दासी पुत्र किस प्रकार से धर्म को समझते हैं, और हम जिसको कुल या वंश या वो सब कहते हैं, उनके कुल या वंश में जन्म लेने वाले, उच्च गोत्र में जन्म लेने वाले ने धर्म को नहीं समझा, अपितु ये दोनों दासी पुत्रों ने जिस प्रकार समझा। लेकिन यहाँ पे आपने युयुत्सु की पीड़ा को जिस प्रकार से धर्मवीर भारती जी ने वाचा दी है, उसको भी भली भांति दिखाने की कोशिश की। और आपने बताया कि वो बुद्धिजीवियों का प्रतीक है युयुत्सु, कि चाहे वो सही का साथ दे ना दे, लेकिन उसके पास से अपेक्षा ऐसी रखी जाती है। लेकिन बात दूसरी जो आपने कही वो उससे भी बड़ी थी कि फिर उसका क्या होता है। अभी भी वर्तमान काल में भी हम ऐसी परिस्थितियां देखते हैं। तो आप उसका उदाहरण देना, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को भी कुछ उदाहरण देना पड़े, लेकिन जिसी ने भी धर्म का या सत्य का पक्ष लिया और अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, तो उसके साथ क्या क्या हुआ है उसका भी परिचय हमें बिल्कुल है। गांधारी की बात भी आपने बखूबी की, उसका मातृत्व उस पर हावी हो जाता है, इस बात को भी आपने। लेकिन फिर वो किस प्रकार से अपने आप को जागृत करती है, कृष्ण के चरित्र को भी आप जैसे प्रभु 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 कह के उनकी बात रख रहे थे, तो वो भी बड़ा भावुक सा लग रहा था। और जिस प्रकार से उन्होंने श्राप का भी स्वीकार किया, कृष्ण ने सबके प्रेम को तो स्वीकारा है, अपितु सभी के किसी के धिक्कार को भी उन्होंने इतने ही प्रेम से स्वीकारा है। यह कृष्ण चरित्र की सबसे बड़ी खूबी जो है वो भी आपने दिखाई। और एक जनरल बात जो आप आगे से अंत तक कहते गए कि युद्ध चाहे दो व्यक्तियों या दो समाज या किसी भी छोटे बड़े उसके साथ हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आम आदमी पर ही पड़ता है ज्यादा, जिसका कोई कसूर नहीं है। जो जैसे भारत पाकिस्तान के हम पार्टीशन की बात कर लें, तो उसमें भी जो परेशान हुए वो तो आम आदमी थे। ये सभी राष्ट्र जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, मानो पांडवों की सत्ता के लिए, ये सत्य के लिए लड़ाई की गई, लेकिन उसमें जो मारे गए वो तो कितने कॉमन मैन थे। उनको सत्ता से, या पांडवों का राज हो या कौरवों का राज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको ये अमन से, शांति से, चैन से रहना था। तो ऐसे कॉमन मैन का भी प्रतिनिधित्व करते हुए प्रहरियों की बात भी आपने की और उनके भावों को भी वाचा दिया, वृद्ध याचक की बात भी की। और एक नाट्य कृति के संदर्भ में उसके जो विभिन्न स्वरूपगत लाक्षणिकताएं जो उनकी है, उसके सभी विधा के तौर पर भी उसकी एक चर्चा आपने की। तो एक अध्यापकीय व्याख्यान भी यह रहा, और दूसरी और भावकों को अभिभावित करने वाला भी एक व्याख्यान रहा। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे भावक जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अगर कोई प्रश्न करना चाहें या फिर प्रतिभाव देना चाहें, तो आप आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। गुजराती में भी आप बात कर सकते हैं। यू आर फ्री टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सो नीलम जी, आपने हाथ किया था ऊंचा, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज कह सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी
भावक। ओके, मुझे लगता है नीलम जी को कुछ कारण से डिस्चार्ज हो गए हैं। हाँ जी प्रकाश, हाँ रावल सर, प्लीज सर। अंसारी साहब, आपका ये जो पूरा हिंदी में आपने बताया, मेरी हिंदी से आपको गुजराती की महक आएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी बोलने की। नमस्ते सर, और पहले आपको। और आप अभी के जो 2-3 साल पहले एक नोबेल प्राइज विनर था बॉब डायलन, उसकी जो कृतियां थी वो पूरी युद्ध के खिलाफ उसने कर दी थी, और उसमें से मास्टर्स ऑफ वॉर करके उसने वो बहुत ही सादा अंदाज में अपने लफ्ज में, कोई कविता बहुत बढ़िया करते थे ऐसा नहीं था, लेकिन वो मैसेज बहुत अच्छा देते थे। तो उसने मास्टर्स ऑफ वॉर्स लिखा था, जिसमें जो महलों में बैठकर लोग युद्ध का उसको योजना बनाते हैं युद्ध की, और मरता है 20, 25, 30 साल का युवान, जो अपने ही खून और अपने ही मिट्टी के साथ वो उसकी लाश पाई जाती है, उसके अंतिम क्षण पाए जाते हैं। तो उस चीज को उसने जीवन भर लिखा, इस प्रकार की, और वो बहुत ही पॉपुलर पॉप सिंगर था अपने जमाने का। तो वो पॉप सिंगिंग में ये सॉन्ग्स डालता था, और अपने अपनी अपनी पूरी करियर के अंत में उसको इस बात का नोबेल प्राइज मिला। जो एक प्रकार का वो रेबेलियस राइटर था। हाँ जी और जी 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 हाँ, बॉब डायलन आप देखेंगे यूट्यूब पे मिलेगा। जी जी और जी। वो उसका कहने का मतलब यही था कि ये युद्ध जो करते हैं वो दूसरे लोग करते हैं, इससे देशों को फायदा नहीं होता। और इसमें इसके साथ मैंने जो अपने धर्मवीर भारती जी की कविता बताते रहे थे, उसमें से एक एक ध्वन्यार्थ ये भी था कि सामंतों को युद्ध चाहिए और आम प्रजा को युद्ध नहीं चाहिए। और सामंत लोग अपनी सामंतशाही तभी चलाते हैं जब वो युद्ध से डराकर लोगों को रखते हैं, खेतीहर मजदूरों को डराकर रखते हैं, उनके जीवन को नियंत्रित करते रहते हैं। उनको युद्ध की आवश्यकता है अपने डर को बनाए रखने के लिए। और अभी के जमाने में देखें तो शस्त्रों के सौदागर जो है, उनको भी ये जरूरत है कि भाई इजराइल में भी शस्त्र बेचने हैं, पाकिस्तान में भी बेचने हैं, अफ्रीका में भी बेचने हैं। उन लोगों की शस्त्रों की जो इंडस्ट्री है उसको बनाए रखने के लिए वो बनाते रहते हैं। और अमेरिका जैसे देश में या कनाडा जैसे देश में तो ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति के पास अब गन आ गई है, गन कल्चर बोलते हैं न्यूज में। और हमें एवरी मंथ मिलता है कि कोई सनकी आदमी जाके कोई स्कूल में, कोई मॉल में जाके बेफाम धुआंधार गोलियां चलाता है और लोगों को मार देता है। तो ये सारी चीजें जो एक वाक्य में रमजान ने भी बोला कि कल्याण खूब हुआ है युद्ध से मानव जात का, फिर भी मान लो जैसे युद्ध में ही श्रद्धा हो, ऐसा कह रहे हैं। अ, अभी अभी 1 महीना पहले हमास के साथ इजराइल ने युद्ध किया, और प्रत्युत्तर में हमास ने भी युद्ध किया, और उसको बताया गया कि इसने वो युद्ध किया है, इसने स्टार्ट किया है। लेकिन बहुत सारे आम लोग मारे गए। वहां पे 15 से 25 साल के लड़के ऐसे हैं जो पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पर, ये जगह मुझे चाहिए, ये जगह नहीं चाहिए। इजराइल और पैलेस्टाइन मिलके 1 करोड़ लोग हैं, दोनों दोनों देशों को मिला के 1 करोड़ लोग हैं। और युद्ध इतना करते हैं, शस्त्र इतना बेचते हैं, रोज इतना खून खराबा करते हैं। इससे ये लगता है कि ये दोनों को वहां से उठा के कहीं रेगिस्तान में अलग जगह पे रख दें तो उन लोगों दोनों को शांति हो जाएगी। और गांधारी की तरह वहां बहुत माएँ हैं जिनको अपने बेटों के खोने का गम है, और उतना ही रोष भी है। उसकी अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो दोनों तरफ ज्यूस जो माएँ हैं वो भी, और जो मुस्लिम अरब माएँ हैं वो भी, वो बताती हैं कि उसको हर वक्त अपने जो बिगड़े हुए बेटे हैं
उनकी चिंता रहती है और एक दिन झोली में उसकी लाश आती है, उससे भी उसको डर लगता है, उसके बाद रोष भी आता है। तो ये अंधा युग वास्तव में लिखकर और पौराणिक कथा का बहुत ही अच्छी तरह से समयोजित उपयोग करके राइटर ने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है, धर्मवीर भारती जी ने। और उसको आपने बहुत ही ये बात भी रमजान साहब ने कह दी कि भई आपने अध्यापकीय तरीके से बता दी कि ये पात्र है, ये पात्र है, ये पात्र है और जनरल मैसेज से हर एक पात्र में से आ रहा था। वो हर एक पात्र की तरफ से जनरल मैसेज को भी आपने बताया और कंक्लूड भी कर लिया कि ये वास्तव में युद्ध विरोधी ये युद्ध के जो मानसिकता है उनसे विरोध करके धर्मवीर जी ने लिखा है। लगातार तीसरा दिन ऐसा है सर कि जिसमें गांधी जी की बात अलग-अलग तरीके से हो रही है। 2 दिन पहले जब बात हुई तो एक व्यंग्य के साथ कोठारी जी ने बात की थी, तो वो गांधी जी की बात उसने उसमें ऐसे ली थी। 1968 की कथा राग दरबारी को उसने बताया था कि जैसे ही 1948 में गांधी जी का अंतिम संस्कार किया, उसके साथ-साथ हमने उसके सारे दिए हुए संस्कारों का भी अंतिम संस्कार कर दिया था। इस बात को बताते हुए राग दरबारी उसने बताई थी। फिर कल जो आए थे वो गांधी के साथ जिसने काम किया और गांधी के साथ अंत तक रहे, ऐसे जुगत राम दवे की आत्मकथा की बात हुई थी। और आज भी ये धर्मवीर भारती जी वो वैसे हैं जो गांधी युग में जैसे कि पले बड़े हो और आगे बढ़े हो और और गांधी जी कितने प्रसिद्ध है, ये बात आज तक हमें पता चलती है। थैंक यू वेरी मच अंसारी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपकी हिंदी सर बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपका जी, जी सर, नॉलेज तो बहुत सर आपकी बात से ही पता किस तरह से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। इकराम आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर ने जो बात बताई और द ओवरऑल मैसेज ऑफ द लेक्चर और ओवरऑल मैसेज ऑफ द दैट बुक वाज़ कि एक जो कथा है वो तो जानी-पहचानी है, लेकिन उनका जो संदेश है वो युद्ध से परे होने का है। तो आपने जो बात बारी-बारी से बताई कि कौरव तो हैं ही गुनहगार, लेकिन युद्ध करने में पांडव भी उतने ही गुनहगार हैं, मानो कम ज्यादा हो लेकिन गुनहगार तो हैं ही। तो युद्ध से परे होने की स्थिति की जो कल्पना है, वो गांधी विचार की परिकल्पना है और हम चाहेंगे, आपने भी ये कहा कि हम चाहेंगे कि ये कृति अभी प्रस्तुत न रहे। हाँ, प्रस्तुत होगी तो ये स्थिति अगर बनी रही तो वो प्रस्तुत होगी और हम चाहेंगे कि यह कृति प्रस्तुत न रहे, ऐसे दिन भी आए। तो ऐसे दिनों की प्रार्थना करते हुए हम आगे के कुछ अंकों की बात यहाँ पे कर दें। कल एक दिन के विराम के बाद हम सुनेंगे प्रीतिबेन जरीवाला को, जो धीरूबहन पटेल की शॉर्ट स्टोरीज, उनकी कहानियों के संदर्भ में उनकी समग्र कहानियों का संचय, वार्ता संपुट, उसको केंद्र में रखकर उनकी बात करेंगे। और शनिवार को सक्करबार नामक गुणवंत राय आचार्य की एक सागर कथा की बात एक छात्रा तेजस्विनी बेन लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस प्रकार से इस माह के अंत तक के सभी दिन मानो फिक्स हो चुके हैं। तो हम इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें और इस श्रृंखला में आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपने अपनी पसंदीदा कृति के संदर्भ में आपने बखूबी बातें की, उसके लिए समग्र कॉलेज परिवार की ओर से और सभी श्रोता मित्रों की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी भावना व्यक्त व्यक्त कर हम इस श्रेणी को आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, विशेषकर आपका धन्यवाद इकराम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी।